Last time we were doing प्रोजेक्टाइल मोशन, मेनली हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ही किया था एंड थोड़ा बहुत वेक्टर्स को और क्लैरिफाई किया था, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म देखा था हम लोगों ने. ठीक है, these were all the things that we did last time and of course we did some questions. So again आज questions हम खत्म कर लेंगे. I hope तुम लोग रेडी हो. वो एक तो जो questions है वो भी मैंने कर लिया था, उसको देख लिया था basically. So we'll discuss those as well. So today we'll just be doing very quickly uniform circular motion, which is quite simple. अगर projectile motion आ गया तो uniform circular motion काफी easily आ जाएगा. And we'll start with forces. ठीक है, forces को हम laws of motion भी बोलते हैं. It's the same thing. Okay, so let's start with uniform circular motion. Any idea what this is? Any idea what this is? So like, if you like tie a string on a rock and you just whirl it around, that sort of thing. यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या चीज है? Is it the speed? Is it the velocity? Is it something else? What is uniform over here? When I'm saying uniform circular motion, the path it moves in is like the same. Could we say that? यूनिफॉर्म पाथ मोशन तो कभी सुना ही नहीं है. यूनिफॉर्म डिस्टेंस कभी नहीं सुना. यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट भी कभी नहीं सुना. यूजुअली जो हम यूज करते हैं दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये तीन चीजें बोलते हैं. क्या मतलब होता है? चलो, वो यूनिफॉर्म का मतलब ही नहीं समझोगे तो हाउ विल यू आंसर दिस? व्हाट डज यूनिफॉर्म मीन? Consistent, they're not changing. Yes, so when I say uniform motion, in general जब हम uniform motion बोलते हैं, what does that mean? When I'm talking about a uniform straight line motion, So we can say that it's I think if we're talking about straight line, then we can say speed or velocity, either of them. okay, speed or velocity, either of them, correct. वहां पे क्यों बोल सकते हैं either of them? Because direction is not changing, right? Yes, so speed तो irrespective direction, speed तो irrespective of direction हमारा uniform रहेगा. ठीक है, so it does not matter कि कौन सा direction है. Irrespective of that, speed would be uniform. But velocity के लिए, if I'm saying it's a uniform velocity or the motion has uniform velocity, then the direction is also constant. कि भाई वो ऐसे से टेढ़ा नहीं हो सकता. It has to be in the same direction. Correct? Only then it's being consistent. Only then it's being the same thing again and again. तो यहाँ पे उसको अप्लाई करना है ना. जब मैंने पूछा कि भाई, एक तो मैंने ऑलरेडी क्लू दे दिया कि या तो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा. Then there will be same speed in the entire motion. Yes. So uniform circular motion में we say it's uniform or uniform here. Uniform here refers to speed and not velocity. ठीक है? It can't be velocity because as I'm moving in a circle, my direction is changing at each and every point. हर point पे वो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, change हो रहा है. तो it cannot be velocity at any point. ठीक है? The magnitude is the same for speed and velocity. Okay? The magnitude of speed and velocity is the same, but the vector or the direction is changing for velocity, and that's why it won't be that. ठीक है? So once we understand this, uniform circular motion becomes what? When an object or a person or a vehicle, whatever, is moving in a circular path at uniform speed, उसको हम uniform circular motion बोल देते हैं. ठीक है? So अब इसमें हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? हम लोग सबसे पहले देखना चाह रहे हैं कि भाई what is the relationship या velocity कैसे मैं निकालूंगा
या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट through this. So I'm going to make this diagram like this. This is my center and this is the circular path जिसके ऊपर वो चल रहा है, move कर रहा है. I'm taking these 2 points as V1 और इसको U बोल देते हैं, U and V. ठीक है. So these are tangents. थोड़ा सा जगह हो गई है यहाँ पे, but these are tangents to the path. This becomes my displacement. The dashed line becomes my displacement, correct? So acceleration निकालना है अगर मुझे, and this is average acceleration. कैसे निकालूंगा average acceleration? This has happened in time t. ठीक है, point समझ गए? These are not two different points. These are same object. एक t0 पे यहाँ पे है, एक t पे यहाँ पे है, उसकी स्पीड ये है. ठीक है, अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द सेम. ओके, सो द मैग्नीट्यूड हम सेम बता सकते हैं. लेट्स मेंशन make it same velocity, same magnitude, but direction is different. How will I give the acceleration? Acceleration कैसे निकालूंगा मैं? So V is equal to U plus 8. No, that could work. हाँ यार, मैं बस velocity, final velocity minus initial velocity कर दूंगा ना. ठीक है, सो इसको निकालने के लिए आई विल हैव टू यूज फाइनल वेलोसिटी से मैं यहां पे ले रहा हूं माइनस इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं इसको U डैश लिख रहा हूं. ठीक है, U डैश का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए आई एम यूजिंग U डैश. ओके, जिससे कि हम जब यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे को कंफ्यूजन ना हो. ओके, कि हम जब यहाँ पे कर रहे हैं, सो व्हाट आई एम डूइंग इज एसेंशियली पिकिंग अप दीज वेक्टर्स, पुटिंग देम टुगेदर इन अ V फॉर्म. यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गया, इस तरह से. एंड मेरा एक्सेलरेशन क्या है? V माइनस U. V minus U. So, but like vectors, we don't connect them like this, right? So it's from the arrow to the tip of the, so it should be opposite. Yes. That's what I was thinking कि कुछ गड़बड़ कर दी थी मैंने. So I want U dash would be equals to U plus A into T. Therefore, U dash minus U will be equals to A into T. तो ये वाला डायरेक्शन में मेरा A आएगा. क्या ये समझ में आया? क्योंकि इन दोनों के सम से मेरे को U dash मिल रहा है. So U plus A will give me the resultant as U dash. ठीक है, which is also equals to delta U upon delta T. सेम चीज है. एंड ये जो है, अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं, तो ये जो है टर्न्स आउट कि द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. आई शुड हैव मेड इट अ लिटिल डाउन. अगर मैं इसको हल्का सा नीचे बनाता तो यू वुड हैव सीन. ठीक है,
क्योंकि ये दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं एंड how do I prove that this is at the center? If I ठीक है। तो इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। मतलब आई एम नॉट एबल टू प्रूव एग्जैक्टली कि ये कैसे सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मेनली बिकॉज थियोरेटिकली तो ये आ रहा है समझ में, बट आई एम नॉट एबल टू यूज लाइक जियोमेट्री टू do that. I'll have to ask Maitri sir for it and then he'll be able to guide me better. So basically क्या हो रहा है, ये दोनों R हैं, दोनों tangent के लिए हैं, that means दोनों के बीच में 90 डिग्री है, राइट? रेडियस और tangent के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। तो दोनों R के बीच का जो एंगल है वो V के बीच का एंगल भी होगा। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी 2 थीटा होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर एट द सेम, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में, दैट मीन्स जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा ना, एक तरह से दे बिकम एक्सीज, ठीक है, कोई भी परपेंडिकुलर ऐसे एक्सीज बन गए ये, ठीक है। अब एक ऐसा है एक ऐसा है, तो अगर y एक्सिस के बीच में थीटा एंगल है तो x एक्सिस से बीच में भी थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो वहां से जो हमें पता चलता है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो a है, दिस एसेंशियली मेक्स दिस, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करता है ये वाला इसको, और उससे हम बोल सकते हैं कि दिस इज मेकिंग और दिस इज इन द डायरेक्शन, दिस इज कनेक्टिंग टू द सेंटर, बेसिकली द A is getting connected to the center, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री से और I'll try to explain it, अगर ये हो सकता है ज्योमेट्री से तो, ठीक है। सो इधर से हमें पता चल रहा है कि A is in the direction of towards the center, so A का डायरेक्शन is towards the center, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ A is towards center, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग इसमें। और अगर हम जैसे v को और पास में लेके आ रहे हैं और पास में लेके आ रहे हैं तो भी सेम चीज आएगी, दैट मीन्स एट dv by dt also my acceleration is towards the center, ओके। तो अब इधर से मैं फाइंड आउट करता हूं कि वेलोसिटी व्हाट विल बी माय एक्सेलरेशन, dv by dt को कैसे मैं निकाल सकता हूं, कोई आइडियाज, एनी आइडियाज, dv by dt को कैसे निकाल सकता हूं मैं? अगर
इसी के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मेक अ न्यू डायग्राम। यहां से तो हमारे को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता लग गया। अब मैंने इस तरह से v ले लिया, दिस इज r, दिस इज v, आई वांट टू फाइंड a का मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसको अटैच कर देता हूँ, a is also inside, just give me a second यार, कुछ गड़बड़ हो रही है आज, just give me a second। Yes, let's do it now। थोड़ा सा मेरा फोकस लूज हो रहा था। चलिए स्टार्ट वापस, ठीक है। सो ये मैंने u लिया है, आई एम मेकिंग द सेम डायग्राम अगेन। दिस इज u, दिस इज u डैश, दिस इज r, दिस इज r, ठीक है। दोनों अलग हैं, दीज आर नॉट पोजीशन वेक्टर्स। और इसी का एक इधर बीच में जो है, ऐसे मैंने लाइन बनाई है डिस्प्लेसमेंट का, सो ये 0 बोल देते हैं या इसको सेंटर बोल देते हैं। दिस इज p डैश, एंड ये वेलोसिटी वेक्टर्स को मैं इस तरह से बना देता हूँ, हमने पहले किया था, u डैश माइनस u, तो ये मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। लेट्स कॉल दिस abc, abd बोल देते हैं इसको, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स बना दिए मैंने। What is happening essentially is I want to figure out the relationship over here so that I get a tangible value of a। a का हमें एक वैल्यू तो पता ही है कि भाई डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, ठीक है। दिस इज हाउ डिफाइन किया हुआ है हम लोगों ने। बट हम यहां से अगर देखते हैं, दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CPP dash, which is this triangle, and triangle ABD, ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होंगे, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री पे जब हम साथ में लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल भी सेम होगा, सो ये इस तरह से होगा। एंड टू साइड्स आर इक्वल, हियर आल्सो टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं दोनों, ठीक है। उससे क्या पता चला हमें कि दिस मेक्स इट एसेंशियली कि इसके तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बीच वाला एंगल मुझे पता है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, 90 माइनस थीटा एंगल विल बी देयर, राइट। सो वहां पे हमारे तीनों एंगल्स सेम हो गए। सो थ्रू ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, a similarity, we get this, ठीक है। both these triangles are similar, and so now are this and this, therefore a, which is this vector,
का मॉड, ठीक है, रिमेंबर द मॉड इज अपॉन, ये इसके साथ में है, सो अपॉन ये वाला क्या है, दिस साइड पी पी डैश का क्या है, दिस इज एसेंशियली डेल्टा X. डेल्टा एक्स, करेक्ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वो, राइट, सो डिस्प्लेसमेंट, सो इसका मॉड ए बी अपॉन, या मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, ए बी अपॉन पी पी डैश विल बी इक्वल टू ए डी, कोई भी एक साइड ले लिया हमने, ए डी अपॉन सी पी. Does that make sense? AB upon PP dash is equals to AD upon CP. ठीक है, तो रेशियो में हो गए, क्योंकि ये कहां से है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी है ये, राइट, दैट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सिमिलर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यस. तो अब इन सब में वैल्यू डाल देते हैं. ए बी इज व्हाट, ए का मॉड, पी पी डैश इज व्हाट, डेल्टा एक्स का मॉड, ए डी इज व्हाट, यू अपॉन आर. मॉड लिख सकता हूं मैं, सब में मॉड लिखा हुआ है मैंने. मॉड क्यों लिख रहा हूं मैं, why am I writing mod first of all? Because we're only dealing with magnitudes. But why can I not deal with the directions as well? क्या मैं नहीं कर सकता वो? Directions constantly change in this sort of motion. I mean, I'm just trying to think why we won't. I'm trying to figure out, ये एक instant पे है, तो I'm trying to figure out at an instant So, what will happen. See, essentially what I'm trying to do, और यहाँ पे हम गलत करते आ रहे हैं और तुम लोगों ने भी करेक्ट नहीं किया. A नहीं होगा यहाँ पे. Can anyone tell me why? It won't be A. AB is not equal to A. कोई बता सकता है क्यों? अभी नोटिस किया मैंने भी, कैच भी नहीं कर पा रहे हो मिस्टेक. ए हम डिफाइन करते हैं ये, विच इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. दिस ए बी इज जस्ट डेल्टा वी. आया समझ में? इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा अपॉन टी को हम ए लिखते हैं. गॉट इट? सो यहां पे ही हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए बार बार कंफ्यूजन भी हो रहा था मुझे. सो आई एम कॉलिंग दिस डेल्टा यू. जैसे ही अब मैं इसको सही करता हूं, it becomes a piece of cake. This becomes delta u. ठीक है, इस तरह से ये हो गया. Now ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, यहां से ले रहा हूं मैं, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x का मॉड, दोनों का इंडिविजुअल मॉड है, एक साथ नहीं है, इज इक्वल्स टू u अपॉन r. इन दोनों का हम मॉड हटा सकते हैं. क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए वी आर एबल टू रिमूव द मॉड वेरी इजीली. ठीक है, इनका भी हटा सकते हैं एक्चुअली, वी कैन रिमूव द मॉड ओवर हियर एज वेल. ठीक है, यहां पे मॉड क्यों लगाते हैं? यहां पे मॉड लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है so that it doesn't come in negative. So that it doesn't come in negative. ठीक है, so इसको लिख लो mod, but write it down कि we cannot remove the mod over here. So because this can be in negative and we do not want negative.
ठीक है, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू ओवर हियर, और यहाँ पे हम मॉड हटा सकते हैं बिकॉज बोथ द क्वांटिटीज आर इन वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, आई गेट डेल्टा यू mod is equals to u upon delta x a mod upon r। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वैल्यू। इसको अब हम r के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको डेल्टा t से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? इसको और दो बोथ साइड्स राइट, या बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड तो एक्सेलरेशन हो जाएगा और राइट में डेल्टा एक्स अपॉन, हाँ तो फिर वो भी वेलोसिटी हो जाएगा ना फिर, डेल्टा एक्स अपॉन। So now I divide it by delta t on both the sides. This becomes acceleration. This becomes u upon r into delta x upon delta v is u. नहीं? नहीं समझ तो आ गया। I was trying to see if I can further simplify the right side. Yeah, we can further simplify it to u square upon r. R is the radius of the circle. So हमारा एक ही वैल्यू u square upon r आ गई। ए की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन r आ गई। ठीक है, u स्क्वायर इज एसेंशियली वेलोसिटी अपॉन r एट दैट इंस्टेंट। अब ये हमने एवरेज वाला फॉर्म यूज किया है, बट इसको हम लिमिट लगा देंगे तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड वी विल स्टिल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा? यहाँ पे कि डेल्टा x तो हमने ये लिया है, ठीक है, डेल्टा x ये है, बट जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, दैट्स व्हाई लिमिट इज इंपॉर्टेंट, एट एन इंस्टेंट द this part and the curve of the circle becomes very same. They become almost equal for a very tiny part of the circle. ठीक है, when I'm only considering a tiny part, then they become same, and that's why I'm able to write it this way. That's why I'm able to write it this way. क्योंकि डेल्टा x हम जब वेलोसिटी लेते हैं वो हम इससे लेते हैं, कर्व से लेते हैं। अगर हम बीच वाले इससे लेने लग गए तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट, टैंजेंट पे लेते हैं ना हम। टैंजेंट पे लेने का ही मतलब हुआ कि हम कर्व का ले रहे हैं रादर देन इन द मिडल। क्योंकि अगर मैंने मिडिल पार्ट को बोला कि मेरा वेलोसिटी है तो मेरा वेलोसिटी ऐसा आना चाहिए, विच इज रॉन्ग। ठीक है, पर when we put delta t tends to 0, then ये जो है delta x, this also becomes really tiny, and at that stage this is equal to, delta x is equals to the curve, the arc of the curve, and so we get the same result. So we get our acceleration, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज दिस, which is v square upon r. In simple terms, this is v square upon r. ठीक है, so यहां से आता है हम लोगों का ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर तुम लोगों ने कहीं पे यूज किया हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज यूज्ड एज mv square, v square upon r. ठीक है, I think I remember using this वेव्स में कहीं ना कहीं यूज किया है हम लोगों ने। वेव्स में कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर आया था, जहां पे mv स्क्वायर अपॉन r किया था हम लोगों ने।
तो उस टाइम वी आर जस्ट पुट इट उस तरह से क्योंकि इट वाज गिवन टू अस और इट वाज रिक्वायर्ड, बट दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इट. ठीक है, एंड इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. Directed towards the center. Just a second. ठीक है, नाउ हटा दो इसको. अब इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, which is in omega form. Omega is essentially angular speed या angular velocity. So उसके लिए we will have to define what this is. Angular speed और velocity. ठीक है, अगेन डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी, नहीं होगा तो स्पीड बन जाएगा. एंड इसमें हमने बोला कि ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. इस तरह से हमने डिफाइन किया है. थीटा इज द एंगल, अगर ये मेरा सेंटर है तो एंगल जो चेंज हो रहा है उसको मैं चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम को हम ओमेगा बोल रहे हैं. Change in angle upon change in time is called omega. Now, from radian theory, theta is equals to delta x रेडियन तुम लोगों को पता है क्या कैसे डिफाइन होता है? Do you guys know how The define radian? the ratio of the radius to the arc made by. Yes. ये arc को मैं बोल देता हूँ से x. So theta in radians is given by x upon r. Theta in radians is given by x upon r, where x is the arc of the curve and r is the radius of the circle. तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन आर. इसको मैं इधर पुट कर देता हूं. सो दिस बिकम्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर. ठीक है, यहां से हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. अब यहां पे हम लिमिट डाल देंगे. सो डी ओमेगा d theta by dt is equals to omega is equals to v upon r. क्या ये आया समझ में? So wait, I didn't get. Can you explain? Yeah, आपने क्या करा? This delta x by delta t into. अब I could have directly written down, but I wanted to incorporate this also. See, delta x upon delta t is what? V. इसी को तो हम velocity बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हम कर्व ले रहे हैं, हम बीच का नहीं ले रहे हैं. ठीक है, नाउ ओमेगा जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं that delta t is tending towards 0, when I put that limit, essentially what will happen, this will become my derivative. ठीक है, सो मैंने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डी थीटा अपॉन डी टी becomes my instantaneous omega, which is equals to v upon r. V is the velocity, the tangential velocity upon r, which is this. आया समझ में? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बार बार काम आता है ये. अब जैसे ही हमें ये पता चला, दैट मीन्स v हमारा आ गया ओमेगा इंटू आर आ गया.
ठीक है, v हमारा ये आ गया. Now a, which is delta v upon delta t, या a जो है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन हमें पता है v स्क्वायर अपॉन r होता है. अभी निकाला हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन. ठीक है, तो उसमें v स्क्वायर की मैं यहाँ पे ये वैल्यू डाल देता हूँ. तो ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये r हो गया. दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर r. So I can now write down centripetal acceleration as in the form of angular velocity as well. Angular velocity की फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ centripetal acceleration को. ठीक है, आ गया समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चनिंग लग रहा है या डाउटफुल सा लग रहा है? नो? So अच्छा और बता. you squared both sides and you took the r down, I didn't square both sides. but that's I what it. put velocity का जो है I put v square में ओमेगा r पुट कर दिया मैंने इसको इसमें इनपुट कर दिया. सो जैसे मैंने इनपुट किया दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर अपॉन r. वो ये कैंसिल हो गया एंड आई एम लेफ्ट विद ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है. ठीक है, सिंपलीफिकेशन में इतनी देर मत लगाओ यार. ठीक है, we've already 6:14 हो गया है. ठीक है, so let's finish up our questions now, क्योंकि आज अपन खत्म कर ही लेते हैं उसको. There's no point doing force for 15 minutes. तो लॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल हैव मोर टाइम आल्सो, क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. निकाल लो क्वेश्चंस फटाफट. चलो आप वो 12 का कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट एंड सी. 12th का मैं बता देता हूँ. 12th का बी का थर्ड है एंड सी का सेकंड है. लेट मी जस्ट ओपन द क्वेश्चन क्विकली. So this is 12th का B का थर्ड. B का थर्ड जो है, नहीं B का सेकंड है, सॉरी सेकंड वाला ही है ना. B का थर्ड है. हाँ थर्ड. बी थर्ड एंड सी सेकंड. तो इसमें सी बेसिकली हमें ओमेगा यूज करना है और उधर से आ जाएगा. सो हमें क्या ढूंढना है? टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम इज गिवन टू अस. डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है उसका रिलेशनशिप हमें पता है. काफी सिंपल है ये. पता नहीं उस टाइम क्यों नहीं आया था. Period of oscillation, which is time period can be written as what? 2 pi upon omega. Now can I find out omega from all the info that has been given to me? निकाल सकता हूँ क्या ओमेगा? नहीं, यहीं पे गड़बड़ कर देते तुम लोग. -2g/L into x ये मेरे को दिया हुआ है. ये किसकी फॉर्म में हो गया? दिस बिकम्स -k/m
into x की फॉर्म में हो गया, ठीक है, माइनस k अपॉन x m की फॉर्म में हो गया ये, एंड वी ऑल्सो नो दैट a is equals to omega square into x, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया था? ये वाला हमने जो डबल डिफरेंशिएशन किया था इक्वेशन का, वहां से आया था, द बिलो वन, एंड द ऊपर वाला जो आता है ये फोर्स वाले से आता है, करेक्ट। जैसे ही मैंने देखा, व्हेन आई कंपेयर दीज टू आई सी, ये नेगेटिव में होता है, ये भी माइनस में होता है, सो ये जब व्हेन आई सी दिस, सो ये और ये नीड्स टू बी इक्वल, एंड सो फ्रॉम देयर आई गेट ओमेगा एज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g अपॉन l। अब तो सिर्फ इनपुट करनी है वैल्यूज और आई विल गेट माय टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें बस ये कोरिलेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट था, एवरीथिंग एल्स वाज सिंपल। ओके, लेट्स कम बैक टू सी का थर्ड है, सी का सेकंड है, यस। Determine the magnitude of velocity of particle p. So this is actually not that difficult, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस इसका जो क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। सो लुक एट द पार्टिकल p, नाउ अंडरस्टैंड कि ये मेरे को उस टाइम क्यों नहीं आया था। अब इसमें हम दो तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे कोई बता सकता है? नाउ दैट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एज वेल। नहीं, एक तो वेव की इक्वेशन से होगा। हाँ, वेव की इक्वेशन से। नोप, वेव की इक्वेशन से कैसे मिलेगा हमें? वेव की इक्वेशन से पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे मिलेगी? पर उसके लाइक टाइम पीरियड पता है ना अपन को, तो मिल सकती है। मतलब पता है हमको कि पी कौन से टाइम पे निकालना है। कैसे पता है? टाइम पीरियड कहाँ दिया हुआ है? वो टाइम कहाँ दिया हुआ है कि कौन से टाइम पे पी आएगा? हाँ नहीं दिया है, सॉरी। ओके, एक परसेंट निकाल सकते हैं टी, तो अगर हमारे पास एक्स मतलब इक्वेशन है तो। हम इक्वेशन होगी तो हम उधर से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके वी विल गेट द टी, ठीक है, क्योंकि हमारे को ग्राफ तो दिया हुआ ही है एंड वी कैन इनपुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली। अगर मैं डायरेक्टली उसमें डाल दूंगा तो काफी इजी हो जाएगा ना। कैन आई फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ द वेव? इक्वेशन ऑफ वेव आएगा ए, हाँ बोल। I tried to do that only, but then we were confused about the omega t plus kx वाला part. How to calculate kx? x माइनस ओमेगा टी प्लस फाई होता है। So kx वाला part we were confused because it's oscillating up and down and also going to the right. See, that's the trick. यहाँ पे क्या हो रहा है? This particle P is moving in two directions. Okay, two components of direction है इसका। कैसे? एक तो ये ऊपर नीचे जा रहा है and at this point, at the given point, it is going up. ठीक है, ये हम फर्स्ट वाले में कर चुके हैं। At the same time, it is also moving horizontally with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें थर्ड वाले पार्ट में बता दिया है, ठीक है। In the third part, we've been asked to show that the wave is moving with 5 meter per second, and so this particle is also moving with 5 meter per second. But like एक question, like usually जब ऐसे questions होते हैं तो like ये calculation का next part में देते हैं, it's like a hint that you have to use another method in that. हमें मतलब usually IB and IGCSE questions में ऐसा ही होता है कि if you calculate इस वाले में तो इस वाले में तो फिर कुछ और ही होता है। तो इसमें भी अगर कैलकुलेट कर देंगे तो क्या दिक्कत है? अच्छा, you mean to say कि वो थर्ड वाले में ही कैलकुलेट करें हम ये? हाँ, वही जनरल केसेस में क्या होता है कि अगर बताया कि इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबली वो वैल्यू इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। चल ठीक है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इससे कैसे करेंगे, एंड देन वी फिगर आउट द अदर वे आल्सो। ये वाला है, ये वाला हमारे को नहीं पता, दिस इज समथिंग दैट वी डोंट नो,
That means इसका जो actual true velocity है, that is the resultant of these two vectors. Do you understand? So the particle is actually moving in this angle. ठीक है? तो मुझे ये अगर पता चल गया तो I can find the true velocity of this particle. ये कैसे पता चलेगा? Any idea? How can I get this? The x component, sorry, the y component of this velocity, I can find from simple harmonic motion. SHM में हमारे को क्या क्या दिया हुआ है? SHM की जो इक्वेशन है उसको निकालने के लिए I need a cos omega t plus phi. ठीक है? अब omega is 2 pi upon time period which has been given to me as 0.8. टी जो है इट्स अ वेरिएबल तो मैं उसको छोड़ दूंगा. फाई जो है, फाई को भी मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मैं एक्स की वैल्यू पुट करके फिर निकाल सकता हूँ. इफ माई एक्स की वैल्यू इज 0 देन दिस शुड ऑल्सो बी 0 एंड टी इज ऑल्सो 0. सॉरी, एक्स नहीं आएगा, ये वाई आएगा. क्या बोल रहा था मैं? अगर मेरे को y चाहिए 5 तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 5 हो गया. एंड cos 0 should be 1. So cos 0 कब हो सकता है? जब t is equal to 0 and phi is also equal to 0. That means phi is equal to 0. तो ये मेरा SHM का इक्वेशन आ गया. ठीक है? SHM का इक्वेशन जैसे ही आया, नाउ मेरे को y, अगेन फ्रॉम द ग्राफ आई हैव बीन गिवन कि p जो है वो 3 है, उसका एम्पलीट्यूड जो है y की वैल्यू इज 3 at that. You do not have the question क्या HR? बस क्वेश्चन नहीं है. No, no, I'm agreeing with you. अच्छा, ठीक है. इफ यू लुक एट द ग्राफ, उसके अंदर ग्राफ से हमारे को y की वैल्यू 3 पता चल रही है when we talking about point P. तो वहां से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूं. ठीक है, so करके देखते हैं. At P y is equal to 3, so 3 upon 5 is equal to cos of 2 pi upon 0.8 into t of P. T at P का निकाल लिया मैंने. अब मेरे को पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट. ठीक है, अब मेरे को ये वेलोसिटी चाहिए. अब लेट्स फिगर आउट द वेलोसिटी आल्सो. वेलोसिटी कैसे होता है? इसका डिफरेंशिएशन करके होता है. ठीक है, सो इट इज माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. इट इज नॉट कॉस, इट इज साइन. ठीक है, मैं पूरा का पूरा वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा. माइनस a is 5, omega is 2 pi upon 0.8 sine of 2 pi upon 0.8 into t. क्या ये क्लियर है? कैसे आया? श्योर? ठीक है, तो यहां से मेरे को ये पता चल गया. अब मेरे को साइन ऑफ 2 pi upon 0.8 into t डालना है. t of p, क्योंकि मैं p पे वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका साइन निकालना चाह रहा हूँ. अब इसका साइन कैसे निकालेंगे? लेट्स मेक अ रैंडम ट्रायंगल लाइक दिस. दिस इज 90. कॉस ऑफ दिस, जहां पे ये थीटा है, कॉस ऑफ दिस इज 3/5. तो ये वाला कैसे आएगा? रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, जैसे मैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करूंगा, दिस कम्स आउट एज 4. सो ये 4 आ गया. सो माई साइन बिकम्स -5 point into 2 pi upon 0.8 into 4 upon 5. ठीक है, क्योंकि 4 upon 5 will be the sine. ठीक है, उसका वैल्यू निकाल के I will get this is my v. इधर का v मेरे को उधर से पता चल रहा है. तो अब मेरे को ये फाइनल ये वाला जो चाहिए, this is equals to 5 square which is my speed of the wave plus v square which is the vertical component of the point. आया समझ में?
इस तरह से हमारे को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी तो सब बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ट्रिकी इन द सेंस कैलकुलेशन तुम लोगों को कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, लंबा हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, सो इस तरह से होगा। अब लेट्स थिंक ऑफ द अदर वे अराउंड, एज अच्छी सेट कि भाई ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं, तो इज द अदर वे अराउंड फॉर दिस। अदर वे अराउंड के लिए इफ यू डायरेक्टली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव, इक्वेशन ऑफ द वेव को हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस phi। उसका अगर मैं उसका अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ, if we differentiate that, we will get minus इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वैसा होगा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार वो वाला भी। Theoretically तो it's working. This is question 12C third. Y is given by a sin kx minus omega t plus phi. a तो मेरा 5 आ जाएगा, y अगर okay, if y is equals to 5, therefore 5 is equals to 5 sin of k कैसे निकालेंगे, k का एक है, omega t is still 2 pi upon t, k कैसे निकालेंगे, note the value of x also, so 0 आएगा, ये 0 0, यहाँ पे ये है pi by 2। ये समझ में आ गई कि कैसे क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं आया होगा। Let me work it through. See, this is the general form of my wave, correct? I'm trying to figure out the different values of the constants. क्या क्या constant है? A constant है, K, omega and phi. These are all my constant. ठीक है? इन सब की values में figure out करना चाह रहा हूँ। So जब मेरा phi, again from the graph I see that when y is equals to 5, ठीक है? कब है ये? This is true when t is equal to 0. That means wave मेरा बस चालू ही हो रहा है, ठीक है? So t is equals to 0. This implies t is equals to 0 and x is also equals to 0 because I can see it from the graph. t और x दोनों 0 से चालू हो रहा है, तो वहां से I get this where 5 again, a जो amplitude है I can gather it from the graph directly. Now sine of 0, क्योंकि k into 0 is 0, minus 0 because omega t into omega into 0 is 0 plus phi. Now अगर ये true है, sin phi needs to be what? 90 degree. Sin phi needs to be 1. Sin phi अगर 1 नहीं होगा तो ये true थोड़ी होगा. Sin phi needs to be 1. Sin phi कब 1 होगा?
जब phi 90 होगा, ठीक है. Correct. Sin phi needs to be 1, which implies phi is equals to pi by 2. ठीक है. So एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास. Now I need to find ओमेगा. हमारे को पता ही है, which is 2 pi upon t. ठीक है. t is given to us. k का कैसे निकालेंगे? k एक ट्रबल मेकर है. k में कहीं ना कहीं कुछ मिक्सअप हो रहा है. So एक तो तरीका है, ठीक है. So अब क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं आ रहा तो वी विल यूज दिस. वी नो पॉइंट P पे x की क्या वैल्यू है? सी फ्रॉम द ग्राफ x की वैल्यू पता चल जाएगी. या ये वाला डाल देते हैं. एट x इक्वल्स टू 1, at x equals to 1, yeah, at x equals to 1, y is equals to 0. मतलब इसमें ठीक नहीं पता हमें. पता चल सकता है क्या? y is equals to 0 and t is equal to, कोई बताना चाहेगा क्या होगा? You have to use your presence of mind in this. क्योंकि ग्राफ में मेरे को t नहीं दिया हुआ है. ग्राफ में जब मुझे t नहीं दिया हुआ है तो how will I find the t? क्योंकि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मेरे को k की वैल्यू निकालनी है. t is capital T by 4. Yes or no? 1/4 ही तो है टाइम पीरियड का. दिख गया क्या ग्राफ से? HR पक्का? ठीक है. सो ये जैसे ही पकड़ने में आया, दिस इज व्हाट 0.8/4 which is 0.2. ठीक है. नाउ आई कैन पुट ऑल दीज वैल्यूज. सो 0 is equals to 5 sine of k into 1 minus omega t, which is 2 pi upon 0.8 into 0.2 प्लस पाई बाय 2. यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जानी चाहिए. ये 0 है तो 5 0 हो जाएगा. साइन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो ऑल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू ईदर पाई, या तो पाई हो सकता है या 0 हो सकता है. सो k माइनस, इसको भी डिवाइड कर देते हैं. दिस इज 4, दिस इज 2. ओके, ये सब कैंसिल आउट हो रहा है. ये भी कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, दिस इज 0. सो k इज इक्वल्स टू ईदर पाई और 0. ठीक है. अब 0 नहीं हो सकता. क्यों? इट कांट बी 0. व्हाई? x ही हट जाएगा. हाँ, x ही हट जाएगा और वो गलत हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव. आया समझ में? जैसे ही मैंने 0 बोला, दैट मीन्स इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट ट्रैवलिंग, which is wrong. It is a traveling wave. Again ग्राफ में दिया हुआ है इस वजह से. So k is equals to pi. ठीक है. So अभी तो हमने k की वैल्यू निकाली है. काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बट मजेदार भी है. ठीक है. So ये लिखना है. Put the reasoning down कि why are we choosing k is equal to pi. ठीक है. These reasonings are the most important thing. यहीं पे आके कंफ्यूजन होता है. These are like fork in the road. कौन सा रास्ता चूज करना है मुझे. ठीक है. So we got k का value. So now I will write down my final equation, which is 5 sine pi into x minus 2 pi upon 0.8 into t plus pi by 2.
एनी क्वेश्चन सो फार? अब क्या कर सकते हैं इसका? हमें भूलना नहीं है कि हमें वेलोसिटी चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। डिफरेंशिएट कर दूंगा फिर। डिफरेंशिएट करके क्या आएगा मेरे पास? कर इसको फटाफट डिफरेंशिएट। व्हाट विल वी गेट? बट डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज्ड हूं बिकॉज़ अंदर x भी वेरिएबल और t भी वेरिएबल है। हाँ, तो नाउ यू नीड टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट आर यू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, हाँ, अगर दो वेरिएबल है हमारे पास x और t, then we can differentiate with respect to two variables, either x or t. So we need to decide किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स इफ वी वांट v, अगर मेरे को v चाहिए, v का मतलब ही क्या हुआ कि वो डेल्टा t से डिवाइड होगा, दैट मींस आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आया क्या समझ में? If I am differentiating with respect to t, x becomes a constant. Then तो it's x becomes a- irrelevant to me. ठीक है? x becomes a constant and it becomes irrelevant. जैसे मैंने ये निकाला, now I can get this done. तो मैं v कर रहा हूँ। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, we can just use negative a omega। क्यों? How can you say that? अच्छा नहीं, अच्छा इनपुट b करना पे निकालना है मुझे। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी निकालनी है। अब पहले तो ये करना है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले तो आएगा साइन का डिफरेंशिएशन। क्या होता है cos। साइन का? कॉस। सो दिस बिकम्स कॉस 5 cos pi x minus 2 pi upon 0.8 into t plus pi by 2 into, अब अंदर वाला करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये इतना सा रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सो माइनस 2 pi 0.8। क्या समझ में आया? It is essentially, if I have a function like this, box में कर लो, if y is equals to function x minus a, then dy by dt, dy by dx, sorry, is equals to df into df upon dx into x minus a upon dx। तो मतलब ये दोनों अलग अलग होते हैं एंड देन वी हैव टू सेपरेट देम आउट। ठीक है, सो पहले बाहर वाले का, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा विच इज 5 cos दिस, तो ये पूरा का पूरा cos में टर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड अब अंदर वाले का, क्योंकि इसके अंदर मेरा t है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0 एंड आई एम लेफ्ट विद माइनस 2 पाई अपॉन t। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसको अगर हमें यूज करना है तो आई कैन पुट डाउन द वैल्यू, आई नीड टू स्टिल पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ, अब मैं इसमें डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ बट आई नीड द वैल्यूज ऑफ x एंड t। कैसे निकालूंगा मैं x और t की वैल्यू? x तो सो ग्राफ में दिख रहा है एंड t हमें पिछला मतलब पहले भी क्लियरली ग्राफ। नहीं दिख रहा है। x इज व्हाट 1.1 लेना पड़ेगा या 1 लेना पड़ेगा, कुछ भी जो भी आ रहा है उसमें, इट्स नॉट 100% क्लियर। 0.6 नहीं है x। 0.5 या 0.6, हाँ 0.6 ले सकते हैं, ठीक है 0.6 लेंगे और टाइम, टाइम इधर से निकालना पड़ेगा। SHM की फंक्शन है ना। नहीं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि हमें 3 पता चल रहा है, y should be equal to 3 और x इज हमारे को 0.6 दिया हुआ है, तो यहाँ से t निकल जाएगा। आया क्या समझ में?
यार इसको मैं एज इट इज ही यूज कर लेता हूँ ना, इसको मैं एज इट इज ही यूज कर लेता हूँ. आई विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट. ये 3/5 हो गया. साइन ऑफ दिस, तो कॉस ऑफ दिस विल बी 4/5. ऐसे कर लेते हैं. 4/5 into -2 pi 0.8. क्या ये समझ में आया कैसे किया मैंने? पिछले वाले में जैसे किया था वही चीज की है मैंने, बिकॉज दिस इज द सेम एंड वो ट्राइंगल बना के निकाल लिया मैंने. This becomes 0.2, this becomes 0.1, so I have minus pi upon 0.1, which is I think the correct thing. 31.4 आएगा ये कुछ. 31.4. पिछले वाले मतलब पुराने वाले मेथड से भी सेम आ रहा था. आने वाले मेथड में आई थिंक 31.7 आ रहा था जो मैंने कैलकुलेट किया था. आई थिंक मैंने एवरेज नहीं लिया, मैं तो मतलब दोनों में -10 पाई आ रहा है. सिमिलर ही आ रहा है. हाँ, इट्स वेरी क्लोज इनफ. ठीक है. सो काफी काफी अच्छा क्वेश्चन था ये. गुड. ओके, तो ई वाला जो है, ई वाला अभी हम छोड़ ही रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हमारे पास 10 मिनट और हैं, 10 से 15 मिनट. लेट्स क्विकली डू फर्दर क्वेश्चंस. इसमें कोई डाउट है? ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आ गया? ठीक है. इसको दो मेथड से हम लोगों ने किया है, अलग अलग मेथड से, दोनों अच्छे से आने चाहिए समझ में. ओके, लेट्स फिनिश दिस क्विकली. कहाँ पे थे हम? 33rd तक कर लिया था. आई थिंक 34th करना था. यस. कोई है Yes. क्या 34th में डाउट? 35th करना था आई थिंक. हाँ सॉरी, 34th कर लिया था. 35th करना है. हाँ, 35th में डाउट है. Graph shows below represents graph represents variation. ये भी बहुत टेंटेटिव है, मतलब नॉट इनफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. Displacement after partial motion, the object is lightly damped. नहीं, so this is lightly damped. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है. क्रिटिकली डैम्ड या ओवर डैम्ड होता तो बहुत, ओवरडैम्प क्या होता है? वो बस रिलेटिव टर्म्स हैं. क्रिटिकली डैम्ड मतलब बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड से एकदम कम हो गया. ओवर डैम्ड का उसके बीच में कहीं हो गया. लाइटली डैम्ड इज वेरी लेस डिफरेंस फ्रॉम द इनिशियल वन, एंड नॉट डैम्ड इज द सेम. ठीक है, सो इसका सी है. नेक्स्ट 36. System executing simple harmonic motion restoring force acts on the system is proportional to the displacement. Force जो है वो displacement से proportional है. ठीक है, that is how we define it. Okay, card connected to two identical springs. करना है ये वाला? हाँ तो ये वाला एक बार कर लो. Card connected to two identical springs is oscillating with simple harmonic motion between x and y, equidistant from point O. Card is in equilibrium. Card is in equilibrium at. Where will it be at equilibrium? Equilibrium कहाँ पे हो रहा है उसका? और आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एंड ओ से इक्विडिस्टेंट है, तो ओ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना. वही तो है. इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जहां पे फोर्स नहीं लग रहा है. तो सेंटर पे तो कैंसिल आउट होगा ही ना. हम्म. या पॉइंट ओ ओनली आएगा ये. पॉइंट ओ ही है. ठीक है.
तो इसमें क्योंकि x और y जो दिए हुए हैं वहां तक तो पहुंचेगा नहीं, दोज आर द एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, दोज आर द एम्पलीट्यूड्स, एंड सो o only o becomes the equilibrium position. 38, एनर्जी जो होती है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाली है, ठीक है। एनर्जी जो है इट इज ए के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से रिलेटेड होती है, तो जो रेशियो आएगा वो भी स्क्वायर में आएगा, आई थिंक 1/25 आता है, ठीक है। इन दोनों का जब रेशियो लेंगे हम, एम्पलीट्यूड में जो चेंज हुआ है 1.5 से 0.3 हो गया, तो वो 5 टाइम्स का चेंज आया है, तो उसमें एनर्जी में 25 टाइम्स का चेंज आ जाएगा, ठीक है। 39, wavefronts incident on boundary. This diagram wavefronts is drawn to scale. Ratio of the refractive index of medium 2 to that of medium 1. कोई बताना चाहेगा? Medium 2 to that of medium 1. तो ये वाला डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था मेरे को। क्या कंफ्यूजन लगा है? सिंपल तो है। वेवफ्रंट जैसे हम बनाते हैं, हम स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, इसमें छोटा बॉक्सेस बना दिए, उसको कनेक्ट कर दिया बस। डायग्राम से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये स्केल है। When the diagram is of scale, so I need to figure out the incident angle and the refractive angle, ठीक है। तो वो उसके लिए D से मेरे को इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं उन दोनों का साइन लूंगा और मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो टेक एनी इंसिडेंट पॉइंट से, ये छोटा वाला जो आ रहा है उसको ले लो, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ है, उस पे नॉर्मल बना दो। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट जो है वो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लेते हैं, अब इसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो साथ में दिया हुआ है, सो दीज टू बिकम्स माय रे। तो ये जो है ये मेरा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये जो है ये मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, ठीक है। दोनों को डी यूज करके आई विल हैव टू फिगर आउट द एंगल्स। जैसे मेरे को एंगल मिले, आई विल हैव टू डू sin I upon sin R, and this is equals to refractive index of medium 2 with respect to medium 1। क्योंकि मेरी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ढूंढ रहा हूं, जहां से आ रही है उससे, तो ऐसे आ जाएगी। गॉट इट? 40th, wave pulse is traveling right string, which of the best represents the direction of velocity of point P? It's downward, B वाला हो गया ये। Yeah. Question is about simple amount of motion. This T drive, ये वाला है क्या? 41? ये बता रहा हूँ एक बार। Sorry? नहीं मैं बोलते चेक कर रहा हूँ। जल्दी करो, ट्रांजिशन फास्ट होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ट्रांजिशन में ज्यादा टाइम लग जाता है वरना। तो longitudinal progressive wave definition। कौन सा है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव? यार, प्रोग्रेसिव मींस ट्रैवलिंग, उसमें लिखा हुआ भी है ट्रैवलिंग, दैट मींस इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लॉन्गिट्यूडिनल मींस इट इज वाइब्रेटिंग इन दिस वे, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करके आगे जा रही है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव, ठीक है। सो साउंड इज एन एग्जांपल, वाटर वेव्स इज एन एग्जांपल। So wait, वाटर वेव progress. नहीं होगा एग्जैक्टली, बट साउंड इज द परफेक्ट एग्जांपल। So progressive is indicative of traveling. The wave is traveling. So मतलब, since we have a term for it, do we also have a term for like a wave which is stationary? स्टैंडिंग वेव्स। Oh shit, sorry. I'm still waiting for your questions.
इतनी देर में क्वेश्चन बता दो, इतनी देर में तो The आंसर rest is fine. ये वाले में नहीं है. This one was a short one. This was fine. ठीक है. Next 42. System executing simple harmonic motion, restoring force acting on the system is proportional to बार-बार same question है. Wave flight is incident of boundary between glass and air. Again, we've done this. 44. The graph below shows we've done this. 45th. Orchestra playing on a boat can be heard by tourists on boat Y. X से Y को सुनाई दे रहा है. It is situated out of sight. It's situated out of sight around a headland. Sound from X can be heard on Y due to diffraction. ठीक है, due to diffraction. Okay. 46 है. 46 नहीं है. है. Diagram 1 represents equally spaced beads on a string on a spring. Okay. Beads are 1 centimeter apart. Longitudinal wave propagates along the spring. Diagram 2 shows the position of the beads at a particular instant. Okay. Which of the following is the best estimate of the wavelength? Wavelength का estimate निकालना है मुझे. 1 centimeter पे है. And I have these many beads. So I can clearly see कि जो मेरा first आ रहा है. So compression to compression होगा ना? Compression to compression. Compression पे maximum आ गया. फिर compression से cross होके rarefaction में जाएगा फिर. Yes. Compression to compression में निकाल सकता हूँ, उससे directly आ जाएगा. So यार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maybe 8, maybe 9. 8 है ये. ठीक है, मैंने काउंटिंग में मिस्टेक कर दी थी, इसलिए 8 सेंटीमीटर्स है. आगे समझ में एचआर? कोई सा Yes, भी sir. वो ले ले. कंप्रेशन टू नहीं, समझ कंप्रेशन में भी आ ले गया. सकता है, या रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन भी ले सकता है. ठीक है, you just need to figure out the pattern and follow the pattern. Next, 47th question is about simple harmonic motion. है क्या इसमें डाउट? क्या नहीं है जी? Yes, sir, I'm just going looking if I've done it or not. So E ka second part, it asks why the motion is damped. Can we just say energy loss in that? in practice, the motion of the tips of the tuning fork is damped. Describe what is meant by damped motion and suggest one reason. So this is air. इसको क्या बोल सकते हैं हम? Resistance? We can just call it air resistance. Okay, I was thinking of friction, but friction is not the right word. So air resistance. So basically, due to air resistance, there's a small force acting against the vibration, which eventually, with every oscillation, it keeps on reducing the amplitude, and so makes it a damped. So for that question, I was thinking the tuning fork, what if the material it's made out of is very rigid? Could that be made of the reason why it's damped? So tuning fork is made up of metal. Oh, okay. जो हाँ, तो they are quite rigid. मतलब metal से rigid और क्या होगा? ठीक है? But they are tuned in a sense. Tuned बहुत interesting होता है. I'm not sure how they are made. काफी interesting होता है क्योंकि बस एक U shape में बना के and you plug them and they produce a certain frequency. So it's pretty crazy. But resonance, right, in tuning forks. Sorry. Is like because like what I've seen in tuning forks, whenever you hit it, like a very high pitched sound is created. Yeah. So High pitch तो क्योंकि high frequency आ रहा है. high frequency. So is that resonance or no? No, that's not resonance. Resonance is key. You pluck you strike this tuning fork, and then say you take it to a string or you take it to water. ठीक है?
और वाटर के अंदर अब जो वेव आ रही है, if it becomes like really high, that's when resonance is happening. ठीक है, so you can also say yeah, so you strike a tuning fork and then you take it to a pipe. ठीक है, it could be a flute, it could be a big pipe, whatever. उसके अंदर ले जाके if you keep it, and if the frequency of the tuning fork is one of the natural frequencies of the pipe, then it will sound like, it will amplify the sound of the tuning fork to a multifold. ठीक है, 4 times, 5 times, even 10 times तक हो सकता है उसमें. तो वो crazy आता है. It's amazing what you can I mean, you can have a lot of fun with sound if you know these concepts of resonance. ठीक है, क्या इसमें डाउट नहीं है क्या? So फिर एक जनरल टाइप क्वेश्चन था, जैसे कि सुनामीज होती है, दैट्स आल्सो कॉज ऑफ रेजोनेंस ओनली, दैट बिकॉज़ प्लेट्स मूव करती है एंड अच्छा, what is your theory around it? I mean, so basically it's caused when the tectonic plates shift, right? And if it shifts in a manner that like it's in the direction of wave travel, then I don't think resonance is the cause of it. I think it's just water being displaced at a very big level Yeah. then why does it rise so high? because it's happening at a huge scale. No, but like it could be resonance also to a certain extent. क्योंकि there are vibrations when earthquake happens, then so basically tsunami is what? Tsunami is an earthquake happening in a sea, and उसकी वजह से जो waves बन रही हैं वो हमारे पे आ रही हैं, and we are calling those waves as tsunami. ठीक है, so it's nothing different than a earthquake, and there are vibrations in the earthquake. ठीक है, that's how we define it कि भाई vibrate कर रहा है earth, तो उसको हम earthquake बोल रहे हैं. तो yeah, I mean, I think resonance can be a factor, but it's, so I think when resonance is a factor, we get like really high up waves. तो हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि सुनामी के केस में रेजोनेंस एक फैक्टर हो. मतलब वो फोर्स भी हो रहा है क्योंकि एक मेजर chunk of the water gets displaced, but the resonance can also be a factor for the height of the waves. Yeah, quite interesting. I'll have to check on that though. I'll get back to you on it. Okay, ठीक है. 48 करा हुआ है हमने. 48 करा हुआ नहीं है? करा हुआ है. करा हुआ है, ठीक है. 49 ये भी करा हुआ होगा. Which of the following correctly describes the change, if any, in the speed, wavelength, frequency of the light wave as it passes from air into glass? Air से glass में जाएगा तो speed decrease होगी, ठीक है. Wavelength जो है, will also decrease. wavelength will also decrease, frequency will remain unchanged. ठीक है, so first वाला हो गया A. 50th diagram below, pulse this and y this. What when the pulse reaches end y, it will be reflected and inverted. ठीक है, it will be reflected and inverted. 51. Oh ये खत्म हो गया almost. 51 का है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा इशू आया होगा. So greenhouse effect is quite cool. Body is displaced from equilibrium. State the two conditions necessary for body to execute simple harmonic motion. ठीक है, ये पता ही है तुम लोगों को that the force should be directly proportional to x, and दो conditions चाहिए होती हैं. एक तो restoring force होना चाहिए. हाँ सर, वही सेकंड वाली समझ ही नहीं आई, सोच रहे. नहीं, इसमें दो कंडीशन यही हो गया ना कि एक तो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड देन द सेकंड कंडीशन इज दिस रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों होगा तभी तो हम एसएचएम बोलेंगे. I was including that as one. हाँ, दैट्स वेयर वो वही गड़बड़ हो जाती है. दैट्स व्हाई मैंने बोलते हुए भी गड़बड़ करती थी, बट आई रियलाइज देन. ठीक है,
वन इज रिस्टोरिंग फोर्स, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, एंड सेकंड इज कि वो जो एक्सेलरेशन या फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक थोड़ा जेनेरिक भी बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, या फिर नहीं? नहीं, टू एंड फ्रो मोशन का नहीं, आई वुड नॉट, नो नो, ठीक है, वो को ज्यादा ही जेनरिक हो गया वो, तो फिर ऐसा हो गया कि एसएचएम को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं या टू एंड फ्रो मोशन को एसएचएम बोलते हैं, दैट्स लाइक गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, दैट्स नॉट एन आंसर। Okay, B. In simple model of methane molecule, hydrogen atom and carbon atom can be regarded as two masses attached by a spring. A hydrogen atom is much less massive than the carbon atom, such that the displacement of the carbon atom may be ignored. The graph below shows the variation with time of the displacement x from its equilibrium position of hydrogen atom in a molecule of methane. Mass of hydrogen atom is this much. Use data from the graph above. Okay. This is fine. ये ठीक है, ये सब तो कर सकते हैं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, जी, this is Maximum plain kinetic SHM. energy. Maximum kinetic energy कैसे? To show the maximum kinetic energy of hydrogen atom is this. Maximum kinetic energy हमारा आएगा सेंटर पे आएगा, मैं कैसे बताऊं इसको? so we'll just use that relationship we came up with पहले ना, which we derived. वो तो बोल सकते हैं, बट सो एक तो ये होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी अगर बताना चाह रहा हूं तो दो तरीके करने के, ठीक है। वन इज कि मेरे को मास ऑफ हाइड्रोजन पता लग जाएगा, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज अ कांस्टेंट, तो मेरे को वो कहीं से भी फिगर आउट हो जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मैं फिगर आउट करूं, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैसे फिगर आउट करूंगा? एट द सेंटर, जब वो इक्विलिब्रियम से मूव कर रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो कैसे फिगर आउट करूंगा? आई कैन, मेरे को ग्राफ दिया हुआ है, आई नो दिस इक्विलिब्रियम पोजीशंस कब वो पास थ्रू कर रहा है। So using the graph, we can one figure out the time when it is at maximum velocity, right? Because हाँ वो होगा तो हो ही रहा है वो ना, ठीक है, जब भी वो इक्विलिब्रियम से क्रॉस कर रहा है तब वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे है। तो वो आ गया, and then we can proceed to make our velocity equation or make a displacement function for SHM and then derivate. यस, तो वहां से तो निकल ही जाएगा, ठीक है। अब इजियर वर्जन इज दिस, कि मैं ये बताऊं कि भाई ये होता है, एंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द edges which is at the amplitudes will be equal to the maximum kinetic energy at the equilibrium। होगा कि नहीं होगा? इसी से तो आया है हमारे पास, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालना काफी इजी है, क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के इज द कांस्टेंट। अब इसको भी मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ, So you'll find that then you'll equate that to half mv square where we know the mass of hydrogen. हाँ, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को एम्पलीट्यूड पता है, एम्पलीट्यूड आई ऑलरेडी नो। के की वैल्यू निकालनी है मुझे। अच्छा, इसमें मास दिया हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि मुझे मास दिया हुआ है तो आई विल हैव टू यूज दैट। बता देता हूँ। सी, ये आता है हमारे पास टोटल एनर्जी, ठीक है, ये इसका हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखा है। अब इसको हमें निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी हम कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन बनाई, डेरिवेट किया, वहां से वेलोसिटी, उसमें मैं पोजीशन डाल दूंगा, उसका एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, एंड आई विल गेट माय वेलोसिटी। ठीक है,
सो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नहीं निकलेगा क्योंकि हमें के की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो ये वाला यूज नहीं होगा यहाँ पे, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला नहीं यूज होगा। फाइन। एंड इफ आई वांट टू यूज दिस, ये भी मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ क्या? ओमेगा मेरे पास, कैन आई फिगर आउट ओमेगा फ्रॉम हियर? यस, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को x और t का ग्राफ दिया हुआ है, तो आई कैन फिगर आउट ओमेगा फ्रॉम द ग्राफ। जैसे मेरे को ओमेगा मिलेगा, m मेरे को पता है, ओमेगा मेरे को पता चल गया, एम्पलीट्यूड आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ, आई कैन पुट इन द वैल्यूज एंड आई विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो क्विकली खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला है क्या, सी वाला? ऑन द ग्रिड बिलो स्केच अ ग्राफ, दिस इज दिस वेलोसिटी हाइड्रोजन ग्राफ ऑसिलेशन, है क्या? On the grid below, sketch a graph to show the variation with time of the velocity v of the hydrogen atom for one period of oscillation starting at 0. There's no need to add values. तो ये this is again जो हमने velocity निकाली है, velocity की equation निकाली है, उसको plot करना है, ठीक है? So velocity की value जो आएगी, say v is equals to minus a omega sin omega t plus phi आएगा, इस फॉर्म में आएगा। इसको हमें इसका हमें ग्राफ बनाना है बेसिकली। So we don't even need the velocity equation because it says we don't have to plot anything on the y-axis, and we know when you take the derivative of the displacement function, it's a negative sign graph. So it's just a phase shift. उसे कर सकते हैं ना, we don't even need that then. हाँ, वो सही है। So basically you don't have to mention the amplitude. That means you don't have to mention this. But you will have to mention कि when is the velocity crossing, when is the velocity zero, वो बताना है तुझे टाइम के रिलेशन में। ठीक है, so ये pi by omega हो जाएगा ना? हाँ, so ये तो you can actually use the above graph directly और उससे automatically आ जाएगा, ठीक है, so उसकी कंजंक्शन में आ जाएगा। फाइन, इजी है ये। नेक्स्ट क्विकली बताओ, डी ई मैंने ई तो करा नहीं, डी वाला मैंने So आप D बता दो, E is still fine, it's definition. हाँ, तो डेफिनेशन पता तो होनी चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। डी बता दूं पूरा? मैंने भी नहीं करा। नहीं करा क्या यार? E is fine, D is. Okay, assuming this is D51. Assuming that the motion of hydrogen atom is simple harmonic, its frequency of oscillation is given by this. ठीक है, F मेरे को दिया हुआ है 1/2 pi root of K upon MP, mass of particle है ये। K is force per unit displacement between hydrogen atom and carbon. This show that value of K is approximately this. तो इसमें क्या दिक्कत है यार? Value of K approximately this बताना है। Frequency of oscillation has been given as, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे B वाले पार्ट में, it is given as 9.1 into 10 to the power 13 Hz. ठीक है, mass of particle is given to me, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है मुझे। So no, it's mass of proton. What? MP is mass of proton, not. So are we supposed to know what the mass of a proton is, or right? Mass of proton and mass of a hydrogen atom are the same. क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये नेग्लिजिबल लेके चलते हैं हम,
ठीक है, so we don't even consider the mass of electron. ये mass of proton को ही हम लेके चलते हैं. So mass of proton and mass of hydrogen are the same thing. ठीक है, so हाँ फिर तब तो ये हो जाएगा फिर. फिर तो सब values put करनी है, easily आ जाएगा. ठीक है, estimate using your answer to D1 maximum acceleration of the hydrogen atom. Acceleration भी निकाल सकते हो. Acceleration कैसे निकालोगे? हाँ, यही तो आएगा. Acceleration equals to minus k upon m का root into x. Maximum acceleration of the hydrogen atom frequency से कैसे related है? Frequency पता चल गई है. How do I find maximum acceleration? This is my maximum acceleration. कैसे आया? मैंने किया a equals to minus k upon m का root into x होता है. ये हम बार बार कर चुके हैं तो अभी तक आ जाना चाहिए. ठीक है, फोर्स वाले रिलेशन से निकाला. अब x is also equal to what? a cos omega t plus phi. SHM मोशन है क्योंकि. ठीक है, सो ये मेरा जो नया मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो एम्पलीट्यूड हो गया वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया. इन दोनों का प्रोडक्ट बिकम्स माय एक्सेलरेशन. ठीक है, सो यहां से निकल जाएगा. a मेरे को कहां से मिलेगा? a मेरे को ग्राफ से मिल जाएगा. फर्स्ट वाले ग्राफ से आई कैन गेट a एंड इसकी वैल्यू हमारे को फ्रीक्वेंसी से मिल रही है. गॉट इट? ओके, ठीक है. लास्ट वाला बता रहा हूँ, ई वाला. डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्या होता है कि जब मेरी सनलाइट रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर जा रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन हाउस गैसेस की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है अगर, तो ग्रीन हाउस गैसेस अब्सॉर्ब कर लेती हैं ड्यू टू दिस थिंग. ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो the frequency of the reflecting light is actually very close to the natural frequency of the molecules. Okay, so because of which the molecules start vibrating. Okay, and that's why वो जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती रहती है because it wants more energy to vibrate. उसको हम ग्रीन हाउस गैस बोल देते हैं. ठीक है, सेम चीज है ये. ठीक है, ये करके देख लेना, ढूंढ लेना. अगर नहीं कंफ्यूजन हो तो फिर मैं बता दूंगा ग्रीन हाउस गैस का और डिटेल में. 50 सेकंड्स और लास्ट ही है, वो भी बताई दो. वो नहीं आया क्या? काफी सिंपल है वो तो. ए होना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से. जस्ट अ सेकंड. डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स पास थ्रू द सेम पॉइंट से मूव कर रहे हैं. हाँ सर, ये होना चाहिए. हाँ, ए होगा. देयर इज ऑलवेज ए. ठीक है, रिजल्टेंट वेव. यस, रिजल्टेंट इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दैट इज एक्स और एक्स के टर्म्स में देगा. जो नीचे दिया हुआ है क्योंकि एक बार पहले किया हुआ है हमने, आगे भी आया हुआ है क्वेश्चन. कैपिटल ए मींस एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है हमारे को. ठीक है, उस पॉइंट पे फॉर द गिवन पॉइंट. ठीक है, इसलिए फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज काफी लंबा भी चल गया हमारा.